And now, yesterday I discussed how much. Can you say that how much I am discussed about the diagram of some machine cycle I am discussed. Yes, sir. Now, which diagram? Only the first one, or move A comma M is already completed? Move A, comma The M. move A comma M is completed. A comma M is completed. So anything is done from your side? Anyone can show that you are done anything? Hmm? You have anything to show to me that you are done? Next, Jack's doing another one, that is move M comma A. Move M comma A. How it will be done? फर्स्ट में क्या लिखना है? Shonok, I'm in a class. Okay. Let assuming the hex code of move M comma A is XY and the instruction written in 8500H. फर्स्ट assuming करना है. क्या assume करना है? So that the hex code of move M comma A is XY XY, very good. and Then instruction is written in थोड़ा loud से 8500H. बोलोगे? And the instruction is written in 8500H. Hello. So first, let the hex code of move M comma E A is XY. Am I right, Rahul? Yes, sir. And the next, the instruction is written in say 8200H. Instruction is written in 8200H. Okay. Therefore, 8200H colon XY. Okay. अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? पिछला दिन मूव ए कॉमा एम लिखाया था. अरे देख के लिखो ना, देख के बोलो ना. Also assuming तुम्हारे the पास तो लिखा हुआ content है of ना. राहुल छोड़ो, दूसरा कोई बोलो. राहुल सर बोलेगा क्यों? दूसरा कोई बोलो. हम तो लिखा दिया था पिछला दिन का. Sir, as this is one byte instruction and data copied हाँ, from B register to accumulator. फॉर्म नो. इसमें क्या होगा देख के बताओ. अभी एकदम पूरा देख के पूरा एकदम डिटो थोड़ी होगा. थोड़ा तो अलग होगा. उसके साथ सोचो इसका क्या है. These are one byte Yes, sir, one instructions. byte instruction. So, sir, And the data copied from Sir, accumulator to memory location होगा. memory locations. पहले था memory locations to accumulator. इधर होगा accumulator to memory locations. Is it clear or not? Yes, sir. तो वो लिखो, क्या लिखना है बोलो.
अरे करना तो तुम लोग का है, थोड़ी हम हर एक बार बोल देंगे हाँ, इतना डायग्राम तो हम दिखाएंगे नहीं ना, हम तो 2-4 को दिखाएंगे, तुमको तो सारा डायग्राम बनाना है। ये तुम खुद से बना पा रहे हो कि नहीं? This is an one byte in move m comma a is a one byte instruction, and the data is copied from accumulator to the memory location, means registered to memory location. So extra machine cycle is required, that is memory write. Therefore, 2 machine cycle is required. One is opcode fetch and another one is memory write. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो पहले, लिखो पहले move m comma a is a 1 byte instruction, and the data is copied from accumulator to memory locations. The data is copied from accumulator to memory locations. So extra memory write should be required. So extra memory write should be required. Therefore, 2 machine cycle required. First one is opcode fetch and second one is memory write. First one is opcode fetch and second one is memory write. डायग्राम कैसे होगा? जैसे पिछला दिन बनाया था सेम टू सेम, जैसे पिछला दिन बनाया था एकदम सेम यही होगा। सिर्फ रीड बार लो नहीं होगा, सिर्फ रीड बार लोड नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर बना लो पहले, रीड बार छोड़ के पूरा स्ट्रक्चर बना लो। इट कैन बी पॉसिबल? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम बनाओ, ये 4 opcode fetch and this is memory write. It should be memory write. Okay, where is instruction is written 8100. पहले ये डायग्राम बनाओ, इधर रीड बार लो नहीं होगा, इधर रीड बार स्ट्रेट जाएगा, इधर रीड बार स्ट्रेट जाएगा, इधर और एक होगा दैट इज द राइट बार, राइट बार लो रहेगा। इंस्टीड ऑफ रीड बार राइट बार विल बी लो, जिधर रीड बार लो होना था उधर राइट बार लो होगा। वो एरो जो है वो नीचे से दिखा दो। अभी अंदर में जो लिखा है 85 नहीं होगा, इसमें क्या है 8200x1, तो इधर होगा 8200xy। अच्छा, इधर में क्या है, कौन सा मेमोरी लोकेशन से डेटा आ रहा है और कौन सा डेटा मेमोरी लोकेशन जा रहा है? कौन सा मेमोरी लोकेशन में जा रहा है, HL का कंटेंट पकड़ना पड़ेगा। सो द लिख दो, लेट assuming the content of HL register pair is 8600. Content of HL register pair is 8600. Content of 86 here is 8600. Okay, done. Yes, sir. अच्छा, इधर में एक चीज होगा, देखो मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट में एक डिफरेंस है। S0 एंड S1 में क्या है? इधर S1 इज इक्वल टू 1 एंड S0 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होगा। देखो रिवर्स होगा, तो उसको अपोजिट करना है। So S0 is 0, S1 is 1.
एस जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखो एस जीरो इज इक्वल टू जीरो कर दिया नीचे। पहले रीड में तो उल्टा था ना, जस्ट हम अपोजिट किया। तुम लोग ड्रॉ करो, तो तुम लोग जब करोगे तो ऐसा कर देना। पिछला दिन ये डायग्राम ड्रॉ करवाया था, देख के भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ एस जीरो को एस वन करो, एस वन को एस जीरो करो, मेमोरी रीड वाला, क्योंकि ये मेमोरी राइट है। नंबर वन। नंबर टू, रीड बार will not be low, read bar will be the state, and write bar will be low instead of read bar. Everyone diagram complete? So 2 minutes, sir. If you want to show to me, you can. तुम दिखाना चाहते हो तो दिखा लो, तो if any kind of mistake, so I can rectify you.
Complete. Anyone can show to me? If you are shown to me, no issues. I can see your copies. These are the list. Whatever I discuss, whenever I discuss the timing diagram. Okay. I done already move A comma B, move A comma M, move M comma B. Huh? Tell me. Anyone want to say something? बोलो कुछ क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बोलना है तो कुछ बोलो, आगे बोले। सर डायग्राम कर रहे सर 2 मिनट। वो अभी तक हुआ नहीं? नहीं हुआ सर, हो रहा है, लास्ट वाला बाकी। अच्छा करो। I cannot see whatever you write S0 and S1. It's correct, na? S1 is the top and S0 is the down. Okay. 8600 and what in a data bus, whatever you mention, content of no, content of 8600 नहीं होगा, content of accumulator होगा। क्यों बोलो तो? राहुल एक्यूमुलेटर से डाटा, क्योंकि एक्यूमुलेटर से डाटा जा रहा है मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशंस में, इसीलिए कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर होगा, नॉट कंटेंट ऑफ 8600। बाकी सारा करेक्ट है। ऊपर में ऑफ कोड फेच और मेमोरी राइट नहीं लिखे हो। T1 T2 T3 T4 के ऊपर लिखना पड़ेगा ऑफ कोड फेच, और लास्ट T1 T2 T3 के ऊपर लिखना पड़ेगा मेमोरी राइट। ओके सर, थैंक यू सर। Anything else anyone want to show? I can see your copy and I can give you the appropriate Ansari. Yes sir. You are not mentioning the higher order address of memory right. Higher order address bus of memory right, not over here. Next. Content of HL क्या पकड़े हो? 8600.
ऊपर में लिखा है एचएल का कंटेंट, लिखना पड़ेगा द कंटेंट ऑफ एचएल रजिस्टर पेयर इज 8600। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, वो हायर ऑर्डर एड्रेस बस, मेमोरी राइट के हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है, मेमोरी राइट के हायर ऑर्डर एड्रेस बस, नॉट दैट नेक्स्ट वन, अनस्पेसिफाइड के बाद। हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा 86, नहीं लिखे हो। अच्छा, राइट बार हमको दिख नहीं रहा है। राइट बाय ऊपर ऊपर हाई करना पड़ेगा, तो लो करके ही छोड़ दिया तुमने लो करके ही छोड़ दिया, और एरो नहीं दिखा रहे हो तुम। आंसर, यू शुड बी शोन योर एरो। ओके सर। हाँ, तुमको वो एरो दिखाना पड़ेगा रीड बार से, जो पहला वाला मेमोरी ऑपकोड फेच का जो डेटा बस है उसको भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, एंड नेक्स्ट जो मेमोरी राइट हो रहा है उसके लिए राइट बार से जाएगा, उसको हाई भी करना पड़ेगा राइट बार को, और हाई नहीं किए हो, हाई करना पड़ेगा। राइट बार। हाँ, राइट बार लो किया ना, राइट लो बार करने के बाद, लो करने के बाद तो फिर हाई होगा। यहाँ पे लो सर। ना ना, नहीं पे, इसके बाद जब जा रहे हो, जैसे रीड बार को किया, एक जगह में हाई नहीं किए, यस सर। जैसे इसके ऊपर में उठाना पड़ेगा। हाँ, उतना दूर में नहीं, जो T4 में T3 में अंदर हो जाना चाहिए। हाँ, उठाओ यहाँ पे। ऊपर। ना ना ना, लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में, हाँ, इधर से ऊपर उठाना पड़ेगा। हाँ, उधर से एरो दिखाना पड़ेगा वो इस, हाँ, ठीक। थैंक यू। बाकी सारा ठीक है। थैंक यू। और किसी का दिखना है, नहीं तो आई कैन प्रोसीड फॉर माय नेक्स्ट। एनीवन वांट्स टू शो? एनीवन वांट्स टू शो? अरे, हम जो बोलने जा रहा था, इसमें देखो हमने जो कराया अभी तक, मूव ए कॉमा बी हो गया, मूव ए कॉमा एम हो गया, मूव बी कॉमा एम हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं? हम इधर ही करा दिया। यस सर। अभी तुम लोगों को क्या क्या करना है, INR B लिख लो, INR B, INX B, INR M, INR B, INX B, INR M, MBI A, 3E, MBI M, 4E, LDA and STA, LDA 8600 and STA 8700। इसका डायग्राम तुम लोगों को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट दिन मतलब टुमारो आई विल बी सी, तुम घर में करो, दिखाओ हमको, ओके। जिधर कोई क्वेरीज होगा तो हमको बोलो, आई विल बी एक्सप्लेन, ओके। ऐसा नहीं है इसके लिए कल से क्लास आना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हम किसी को बाउंड नहीं करेंगे, तुमको दिखाना ही है, जिसका मर्जी दिखाओगे, जिसका मर्जी नहीं दिखाओगे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं दिखाएगा, हमारा क्या, हम आगे बढ़ते जाएंगे, मगर नहीं सीखोगे तो तुम लोग नहीं सीखोगे। जो दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, जो नहीं दिखाना चाहते हो इज ऑल राइट, नो इश्यूज फॉर दैट। बट दिखाने से क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ करेक्शंस है तो हम कर देंगे, जिसमें तुमको वो गलती आर ना हो, ठीक है। ये दोनों है, और ये भी इधर से जो हम बोले हैं 1 2 3 4 5। देखना रामगढ़ का भी जो वीडियो मैंने किया उन लोगों का हो गया है,
तुम उससे भी हेल्प ले सकते हो। उधर में भी बहुत सारा स्टूडेंट किया है, उधर से भी हेल्प ले सकते हो, और नहीं तो तुम खुद से करो। जो स्ट्रक्चर बनाओ पहले, अंदर में क्या लिखना है नहीं लिखना है हम बता देंगे, स्ट्रक्चर कम से कम बनाओ, डायग्राम कम से कम बना लो। इज इट क्लियर? डायग्राम में तो तुम लोगों को पता चल गया है जो कैसे होगा। सर कोडेड एक बार थोड़ा सा दिखाइएगा कौन कौन सा था टेक्निक हैं? से, एक बार दिखाइएगा कौन कौन सा। INR B, नहीं तो लिख लो INX B, INR M, MBI A,3E, MBI M,4E, LDA 8600H, STA 8700H। ओके सर, थैंक यू। तो ये तुम लोग घर में करो पहले, इसमें जो क्वेरीज होगा हम तुमको बोल सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, पिछला दिन तो मेमोरी इंटरफेसिंग हम बोल दिया था ना। अच्छा, प्रोग्राम कितना दूरी तक किया था एक बार बोलोगे? लास्ट प्रोग्राम क्या हुआ था? बोलो, लास्ट प्रोग्राम क्या हुआ था? Write an assemble language program to add two decimal number 25 and 46 and store the result in 8600H in decimal form. Repeat once again. Write an assemble language program to add two decimal number 25 and 46 and store the result in 8600H in decimal form. दो नंबर का एडिशन करवाया जिसमें कैरी आया था, एक कैरी 8600 में जाएगा, रिजल्ट इन 8601, ऐसा कुछ करवाया? इसका पहले कोई बोल पाओगे यस सर। कि क्या करवाया कि नहीं करवाया? करवाए। हो गया ना? यस सर। तो अभी लिखो, राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज add 5 number stored from 8500H, stored from 8500H. Sir, one repeats one again. Write an assemble language program which is add 5 number stored from 8500H, store the result in
86008. Store the result in 86008. Store the carry in 86018. Store the result in 86008. Store the carry in 86018. तुम लोगों को हेक्स चार्ट के बारे में बोला था, हेक्स चार्ट 776777 पेज का. Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट इनपुट में किधर से बोला? कैन यू से द इनपुट मेमोरी लोकेशंस? 8500H, वेरी गुड. 8501H, 8501H, 8502H, 8503H, 8504H. Isn't it? The number is Sir, like sir. that: A, B, C, D, E, F, E, sorry, 76 and 95. These are the 5 numbers. I'm repeating once again: A, B, C, D, E, 76 and 95. First add those numbers. First add right side. B is 11, D is 13, E is 14, 6 and 5. Add how much? कितना होता है? So 49 होगा, जिसमें 48 से फिर माइनस होगा. हाँ बोलो. 49. So 49 आएगा. Yes sir. 49 very 48 से good. माइनस हो जाएगा. 48 subtract हो 4 जाएगा. कैरी हो जाएगा सर. One आएगा. Remainder will be put it over here. Yes sir. Am I right? So carry 48 4. how much? Yes sir. 4. 16 to 4. 48 sir. 16 to 3. 3. The 3 coming here as a carry. अभी add करो. 3, 10, 12, 14, 7, 9. कितना आ रहा है देखो. So 52 आ रहा है. सबका 52 आया. ये तो बहुत सिंपल सा है. 3, 10, 12, 14, 7, 9. जैसे डेसिमल में एडिशन करते हो कितना आएगा? तो 55 आएगा. 3 + 3 55. सबका 55 आ रहा है. Yes, sir. So Yes, sir. 55 minus 48 again. How much? 7. 7. 7 will be 7. put it over here. 48 means how much? 6 3. into 3. 3. So 3 coming here as a carry. So 371. 71 will be put Yes, it over here and 03 will be put it over here. Okay? Yes, sir. Question is clear to everyone. There are 5 numbers. You should be add. Number may be anything else. Result will be stored into the 86008 and the carry will be stored in 8601H. It's clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So can I proceed? Before going to the program, I given some clues or I give some story सुनाना चाहता है. जैसे मान के चलो, I am a blind person. I cannot see.
So how can count the 10 people? I need 10 people. Okay, I need the 10 people. Say I need 10 boys people. 10 boys people, not in a only male people, only not a female people from your side. So first I just check the Vishnu head, whether this you know your hair is small or your hair is big, small hair. So Vishnu you go one, and I am counting one, Vishnu one. Then again on his head, another, that is two. Similar like Deepak, three, as so on and so forth up to 10. Is it possible? ऐसे करके 10 जन को काउंट कर सकते हैं? Yes, sir. Yes. जैसे मान के चलिए प्रीति का हेड हम देखा, so you know her hair is long, so I cannot count her, so it is a eliminate. Or I am not detecting any head, so I am not counting. So whenever any head is detected, I'm just counting and I'm just passing through and I am incremented by one. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Similar way, we are doing the carry. Whenever carry is occurred, we have a register which is initially at 0 and it should be increased 1 by 1 and 1 by 1 and 1 by 1. Whenever carry is detected, it will be increased. If carry not detected, it will not be increased. If I'm getting any head like Preeti head, I am not increased. If I'm getting without any head, I am not increased. So like that, whenever I'm getting the head of any male persons, and then I will be increased, otherwise not. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट मान के चलो हम ऐसे करके हम लोग कैरी काउंट करेंगे. नेक्स्ट मान के चलो हम तो ऐसा भी कर सकते थे सर, जब भी कोई हेड डिटेक्ट हुआ, चलो 10 था 9, चलो अनदर हेड डिटेक्ट किया, चलो 8. मतलब whenever I am detecting any head, I am just decrement myself. So whenever I am 0, my job is over. It can be possible. It can be possible or not? Repeat it. रिपीट करेंगे एक बार. Yes, sir. हम इनिशियली 10 वैल्यू हमारा अंदर स्टोर किया हुआ है. जब भी कोई हेड डिटेक्ट करेंगे, मेल हेड, आई एम डिक्रीमेंटेड बाय 1. Again another head, I am decremented another 1. So head will be, whenever I am detecting head, decremented by 1 and 1 and 1. So in this process, I am, whenever I am become 0, my job is over. जब भी कोई हमको हेड डिटेक्ट करेंगे हम बॉयज का, तो हम एक डिक्रीमेंट हो जाएंगे. ऐसा 10 से डिक्रीमेंट करते करते जब 0 हो जाएंगे, तो हमारा मतलब है 10 जन को हम चुन लिया और हमको नहीं चाहिए. मतलब हमारा जॉब हो गया, हमारा काम खत्म हो गया. Am I right? Yes, sir. ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. 0 से तुम 10 भी काउंट कर सकते हो और 10 से डिक्रीमेंट करते करते 0 भी आ सकते हो. इट्स क्लियर? यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. तो अभी देखो, हम जो 0 से काउंट 10 से काउंट करते करते 0 में आ रहा है, इसमें एक फायदा है, क्योंकि हम लोगों को देयर इज नो 10 फ्लैग. ये 10 होने से, नंबर 10 होने से कोई फ्लैग सेट होगा, ऐसा होता है? कोई नंबर के ऊपर कोई फ्लैग सेट नहीं होता है, मगर 0 होने से एक फ्लैग सेट होता है, उसका नाम है 0 फ्लैग. Am I right? Yes, sir. तो Yes, Yes, इसलिए sir. हम लोग Yes, sir. जब भी ऐसा 5 नंबर्स 10 नंबर्स ऐसा करेंगे, पहले हम लोग एक रजिस्टर लेंगे जिसको 05 010 ऐसा में इनिशियलाइज करेंगे. उसको एक एक बार डिक्रीमेंट करते जाएंगे. जब वो रजिस्टर खत्म हो गया, मतलब हमारा एडिशन खत्म. इट्स क्लियर? जब उसका वैल्यू 0 हो गया, मतलब हमारा एडिशन खत्म हो गया. इट्स क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. फिर नेक्स्ट पार्ट. सर एक एक साथ तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, लाइक एड एम, लाइक एड बी, कुछ भी है, तो वो एक साथ कितना नंबर के एडिशंस कर सकता हूँ? So, 2 का. 2 का.
तो 5 नंबर के अंदर कितने एडिशंस करना पड़ेगा? कितना टाइम्स एडिशन करना पड़ेगा? 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों का एडिशन करेंगे, रिजल्ट जो आएगा इसके साथ इसका एडिशन करेंगे, जो रिजल्ट जो आएगा उसके साथ इसका एडिशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसका एडिशन करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, Yes, sir. क्लियर। तो 5 नंबर रहेगा तो 4 बार एडिशन करना पड़ेगा। इट्स क्लियर? Yes, sir. तो 5 बार के अंदर 4 बार एडिशन करना पड़ेगा। हम 5 बार एडिशन करना चाहेंगे तो क्या कर पाएंगे? पापा में क्लास कर रहा है बाद में। 5 नंबर के अंदर 5 नंबर, हम ये 5 नंबर है, हम 5 टाइम्स एडिशन करना चाहते हैं, तो क्या कैसे करेंगे? बोलो, कोशिश करो, जिसमें कोई रिजल्ट में फर्क ना पड़े। हमारा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? फिर से बोलूं? सर रिजल्ट तो सर 0 से ऐड कर देंगे लास्ट में। वाओ, ब्यूटीफुल। मतलब लास्ट में करो और पहले में करो, एक 0 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो 5 बार एडिशन Yes. कर सकते हैं। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हमारा 4 बार एडिशन कर रहे हैं, हमको 5 बार एडिशन करने के लिए हमको 0 के साथ ऐड करना पड़ेगा। इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. वेरी गुड। तो चलो देखो अभी प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, एडिशन किसके साथ होता है हर एक बार? बोलो, किसके साथ एडिशन होता है? 1 रजिस्टर इज कॉमन ऑलवेज। क्या नाम है उसका? ऐड पढ़ने का टाइम बोला था। एक्यूमुलेटर। तो हम उसी को पहले 0 कर दिया, उसी के साथ ऐड करेंगे, मतलब एक बार एडिशन ज्यादा हो गया। इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट हम और एक रजिस्टर ले रहे हैं, सॉरी मूव P, A। हम और एक रजिस्टर को 0 करना चाह रहा था, इसीलिए ऐसा किया। सर MVI C, 00 क्यों नहीं किया? वो भी कर सकते थे सर। हमारा क्वेश्चन अभी समझ में आया किसी को ना? बोलो सर, आप पहले MVI लिखे थे, MVI C, 00 करने जा रहा था, हम काट के मूव C, A किया। इसके बाद क्या होगा? एक्यूमुलेटर क्या होगा? खाली हो जाएगा सर। खाली मतलब नहीं, क्या होगा? 0 0 होगा, है ना विष्णु? जैसे एक्यूमुलेटर का वैल्यू सर सी में आ जाएगा और एक्यूमुलेटर का पहले जो था वैसे ही रहेगा। मतलब अभी इसके बाद क्या Yes, होगा? sir. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? C भी 0, एक्यूमुलेट यस ए भी 0। A भी 0। इज इट क्लियर? अभी हमारा क्वेश्चन है Yes. सर, मूव Yes, C, sir. A क्यों किया? सर MVI C, 00 करने से आपका क्या दिक्कत होता था? देखो प्रोग्राम तुमको कुछ ट्राई करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका से, तो जाकर ना तुम प्रोग्राम सीखोगे। प्रोग्राम ऐसा हम लिख देंगे, तुम लिख लोगे तो कभी प्रोग्राम नहीं सीखोगे। हम तो ये प्रोग्राम 2 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं, मगर लिख के क्या फायदा जो तुमको समझ में ही नहीं आए। इसलिए हम हर एक स्टेप कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं तुम लोगों को क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं तुमको अभी, जो सर हम MVI C करने ही जा रहा था, MVI C, 00H, हम काट के मूव C, A किया, मगर क्यों किया? गलत किया ना, सही किया ना, क्या किया? एक्यूमुलेटर का वैल्यू सी में देने के लिए सर MVI यूज किया, MOV यूज किया। MVI सर। अगर यूज करते तो सी में हम लोग वैल्यू नहीं आता ए का। ना MVI C, 00 करने से क्या होता था? बोलो, कोशिश करो। देखो तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तो प्रोग्राम नहीं सीख पाओगे। प्रोग्राम सीखोगे तो तुम लोग को जॉब मिल जाएगा। प्रोग्राम इतना मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज सीखो, प्रोग्राम सीखने का कोशिश करो। तुम लोग
कुछ स्पीक आउट नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे नहीं। बोलने का कोशिश करो, गलत हो तो क्या हुआ। हम फिर से बोले, क्वेश्चंस क्या है? हाँ सर आप बोले। यस सर। अच्छा, हम बोल नहीं रहे, हम इधर लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं, क्योंकि इधर प्रोग्राम लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं MBI A,00 किया था, इसके बाद हम करने जा रहा था MBI C,00H, राइट। वो ना करके Yes. मैंने ए किया MBI A,00H एंड मूव C,A। अभी हमारा क्वेश्चन है, वो ए करने से सही होता था क्या, ए करने से सही हुआ? दोनों के बीच में फर्क क्या है? इसमें सी का वैल्यू क्या होगा? 0 0। ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू भी 0 0 होगा। इसमें क्या होगा? 0 0। 0 0। किसका नहीं वैल्यू? होगा सर। सी का वैल्यू और ए सी का का वैल्यू? वैल्यू तो दोनों ही तो सेम है। दोनों का सर। दोनों का तो, दोनों जो प्रोग्राम लिखा है दोनों ही तो सेम है। हाँ या ना में बोलो। यस सर। तो इसको हम सर, काट के क्यों मूव C,A किया? कुछ ना कुछ कारण तो सर अब किया है। सर सर ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। वाओ, sir. ब्यूटीफुल, Sir, यही हम पूछ रहा MBA था। मूव C,A is a 1 byte इंस्ट्रक्शन बट इट्स a 2 byte इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम यूज करने से 1 बाइट ज्यादा लग रहा था, इसीलिए हम ना करके मूव C,A किया। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. Yes. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस हम सर। MBI Yes. C,00 करने से भी कोई नंबर काट नहीं देता था, कोई प्रोग्राम भी गलत नहीं होता था, मगर हमारा 1 बाइट कम लगा, इसलिए मैंने मूव C,A किया। इट्स क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes. नेक्स्ट, MBI B,05H क्यों किया बोलो तो? प्रोग्राम लिखने से पहले हर एक लाइन में सोचना पड़ेगा तुमको, ये सर क्यों कर रहा है, किसका सिलसिले में कर रहा है। ये नहीं सोचोगे तो प्रोग्राम नहीं होगा, और हम लिखते जाएंगे तुम भी लिखते जाओगे, वैसा करके कोई प्रोग्राम नहीं सीखता है। हम तुमको सिखाने का कोशिश में है, हम प्रोग्राम तुमको कराने का कोशिश में नहीं। कराना तो हम अभी तुमको 50 प्रोग्राम ऐसा ही गूगल क्लासरूम में दे सकता हूँ करके, कराने का भी जरूरत नहीं है कि नहीं? Yes. मूव B,05 क्यों किया? अभी अभी बोला है इसका। 5 किधर है प्रोग्राम के अंदर, उसके साथ रिलेट करो। क्वेश्चंस में तो लिखा हुआ है 5। Yes. क्या है? बोलो। बोलो। सर नंबर्स है। तो 5 नंबर है। 5 नंबर को Add एडिशन 5 करना है, इसीलिए B को 05 Yes, sir. किया। जब भी जरूरत पड़ेगा एक नंबर एडिशन करेंगे और B को डिक्रीमेंट करेंगे। ऐसे करते करते जब B 0 हो जाएगा तब हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट?
Yes, sir. Yes. बी को 5 किया, हर एक बार एडिशंस करेंगे और बी को एक डिक्रीमेंट करेंगे। जब खत्म हो जाएगा, बी जब 0 हो जाएगा तब हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। सर सी को 0 क्यों किया? स्पीक आउट। तो इनिशियलाइज करना है इसलिए। इनिशियलाइज तो किया ही है, इनिशियल तो 0 तक किया ही है। इनिशियलाइज क्यों किया है? ए को भी इनिशियलाइज किया, सी को भी इनिशियलाइज किया। ए के साथ ऐड होगा, एक बार 0 0 के साथ ऐड करना है, इसीलिए ए को इनिशियलाइज किया। और सी को हम इनिशियलाइज किया 0 0 में, क्योंकि जब भी कैरी आएगा सी को एक बढ़ाएंगे। Whenever carry is occurred, C will be incremented by 1. Whenever carry is occurred, C will be incremented 1. If carry is doesn't occur, so C will be remain same. It's clear? Yes, sir. The next एग्जांपल देके ऐसा समझाइए सी वाला। C वाला जो मैंने बोला था ना, जब भी हेड डिटेक्ट Yes, करेंगे, एग्जांपल देके। हाँ, जब भी हेड डिटेक्ट करेंगे फॉर बॉयज हेड, I will be incremented by 1. Whenever any girls student का head हम detect करेंगे, you know, for hair, I can know that hair is long, so I am not incremented by 1. Means there is a conditions. If carry flag is set, then C will be incremented by 1. If carry flag is not set, carry flag set होने से C बढ़ेगा, नहीं होने से C नहीं बढ़ेगा। जैसे हेड डिटेक्ट कर रहा हूँ, जब भी हमारा हेड डिटेक्ट हो रहा है, हेड डिटेक्ट होने से हम देखेंगे जे हेड क्या डिटेक्ट हुआ, बॉयज का और गर्ल्स का। बॉयज का हुआ तो इंक्रीमेंट करेंगे, बॉयज का नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इट्स क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. नेक्स्ट, LXI H, 85008 क्यों किया सर? HL रजिस्टर पेयर में 8500 स्टोर होगा। हाँ या ना में बोलो। Yes, sir. अभी M का कंटेंट मतलब कितना? What is the content of M? AB. AB मतलब the content of 8500H, the content of 8500H, that is AB, is the content of M. Am I right? Yes, sir. The content of 8500H, that is AB, now is the content of M. Okay? Next, add M. What will be happen? Accumulator plus sir memory content. Add A is equal to A plus M. A is equal to A plus M. Exactly. Sir, A में क्या था? 0. A में 0 0 था। M में क्या था सर? AB. 0 0 के साथ AB ऐड हो गया। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम चेक करेंगे कैरी फ्लैग सेट है कि नहीं है। हमको पता चल रहा है इसमें तो कैरी फ्लैग नहीं होगा, मगर हमको चेक करना ही है। जंप एट नॉट कैरी, कैरी फ्लैग ना आने से जंप करेगा, राइट? और कैरी फ्लैग आने से क्या करेंगे? INR C को एक बढ़ाएंगे। If carry occurred, then C will be incremented by 1. और कैरी ना आएगा तो इधर से इधर जंप कर जाएंगे, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट में हमारा क्या काम है? INX-H। क्या होगा INX-H करने से? INX-H करने से क्या होगा? AB plus. हाँ बोलो। AB plus 1 हो जाएगा। AB plus 1 होगा तो INR M करने से क्या होगा? No sir, no sir. कंफ्यूज करने के लिए हम तैयार है, बैठे हैं। तुम जो बोल रहे हो वो INR M करने से होगा। AB is equal to AB plus 1। INX-H करने से क्या होगा? पहले फंक्शन बताओ ना, INX-H मतलब क्या है?
तो एक HL जुड़ and जाता है। plus फिर one. बोलो बोलो HL HL में इज इक्वल टू, तो HL is equals to HL HL plus plus 1. वेरी गुड। HL में क्या था? So HL में AB sir. नो नो, मेमोरी लोकेशन में था। HL में क्या था? 8500H. 8500। तो HL में अभी क्या होगा? 8501H. 8501H। अभी M का कंटेंट मतलब क्या है? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ M? CD. CD. CD, वेरी गुड। अभी देखो HL चला गया इधर, तो अभी M का कंटेंट मतलब CD। इट्स क्लियर? अभी HL चला गया इधर, तो अभी M का कंटेंट मतलब CD। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. सो INX किया मतलब नेक्स्ट बार एडिशन करने के लिए। एक बार तो हमारा पूरा एडिशन हो गया, तो हम करेंगे DCR B को एक डिक्रीज करेंगे। तो DC अभी क्या होगा? B आगे अभी क्या होगा? था कितना? 05. अभी क्या होगा? 04. 04. तो ये अभी चेक करेंगे जीरो हुआ कि नहीं हुआ। जंप एट नॉट जीरो, नॉट जीरो होने से जंप करेगा। किधर जंप करेगा? इधर जंप करेगा, इसलिए इधर डबल स्टार दिया। इधर में डबल स्टार, इधर से डबल स्टार। इधर से जंप करेगा, इधर आएगा। जीरो नहीं होगा तो फिर से जंप करेगा। बोलो तो इसका पहले एक्यूमुलेटर में क्या था जंप करने से पहले? AB ए? सर। ए? बोलो बोलो सर बोलो। सर बोलो, हो रहा था। AB sir. AB कैसे हुआ सर? 00 प्लस AB था। AB जीरो प्लस जीरो 0 प्लस AB करके AB आया था। AB आया। अभी देखो जब जंप करेगा तो एक्यूमुलेटर में था AB, M में क्या है? CD। CD। तो AB के साथ CD एडिशन होगा। Yes, sir. रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रहेगा, कैरी होने से C को बढ़ाएगा, कैरी ना होने से इधर जंप करेगा। ऐसे करके ये लूप, इधर से ये जो लूप है देख रहे हो, ये जो लूप है ये 5 टाइम्स घूमेगा। 5 टाइम्स घूमेगा। क्यों? 5 बार ऐड करना, 5 बार ऐड करना है। 5 बार ऐड करना है, और B का वैल्यू भी 5 था, इसलिए 5 Yes, टाइम्स sir. इसको घूमेगा। जब खत्म हो जाएगा तो अब तुम्हारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट किधर में रहेगा बोलो तो? रिजल्ट किधर में रहेगा? ADM. Result मेमोरी में। ना ना, मेमोरी में कैसे? पहला बार ऐड करके बाद रिजल्ट किधर आता है? एडम के बारे में सोचो। सर एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में रिजल्ट रहेगा। यस सर। एक्यूमुलेटर में रिजल्ट रहेगा, तो उसको आपको किधर स्टोर करना है? 8600 में, है ना? यस सर। तो कैसे स्टोर करेंगे? कैसे स्टोर करेंगे बोलो? STA 8600। तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 8600 में चला जाएगा। इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर। सर नेक्स्ट सर, अभी देखो कैरी किधर है सर? कैरी किधर है? INR. हैं? INRC. INRC तो कैरी करने के लिए किया था। कौन सा रजिस्टर के अंदर कैरी है? Sir C. सी में। C. सी में उसको किधर लेकर जाना है? 8601H। 8601H में। जब हम ST 8601H करेंगे तो चला जाएगा C? नो सर। कौन सा जाएगा? 71 जाएगा सर। 71 मतलब एक्यूमुलेटर ही जाएगा, है कि नहीं? यस सर।
ST8601 मतलब एक्सीलरेटर कंटेंट जाएगा। तो C को पहले हमको A में लाना है। इज इट क्लियर? C का कंटेंट A में चला जाएगा, A का कंटेंट चला जाएगा ST8601 में। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट द लास्ट लाइन HLT। ये प्रोग्राम भी मेमोरी लोकेशंस के साथ लिख लेना, क्योंकि ये तुम्हारा किट में एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, ये तुम्हारा किट में एग्जीक्यूट करना होगा। इट्स क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम? प्रोग्राम में No, किसी का sir. कोई प्रॉब्लम? No, कैन आई sir. प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? Yes, sir. Write an assemble language program which is multiply two numbers stored in 8500H and 8501H. Write an assemble language program which is multiply two numbers stored in 8500H and 8501H. H and 8501H. Store the result in 8600H and store the carry in 8601H. Store the result in 8600H, store the carry in 8601H. Store the result in 8600H, store the carry in 8601H. Store the result in 8600H and store the carry in 8601H. Is it clear? Yes. Yes. ऐसे भी लिख सकते हो कैरी, और नहीं तो लिख सकते हो स्टोर द lower 8 bit of your lower 8 bit of result stored in 8600H and store the higher 8 bit of result in 8601H. It's clear to you? Sir, lower 8 bit store in 860. Lower 8 bit Store in 86. 00H and higher 8 bit of your result will be stored in 8601H. Okay, sir. सर इनपुट क्या बोला, आउटपुट क्या बोला? मान के चलो 8500H 8501H, आउटपुट 8600H 8601H। मान के चलो क्या डेटा है हमको पता नहीं है, मान के चलो PQ एक डेटा है, RS एक डेटा है। PQRS हम पकड़ रहे हैं, ऐसा है होता नहीं है हेक्साडेसिमल में, ऐसा मत सोचो। PQRX ऐसा कुछ डेटा है, जब पता नहीं हमको क्या है, एक PQ है एक RS है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, मान के चलो WXYZ ऐसा रिजल्ट आया।
तो वाई जेड जो है इधर जाएगा, डब्ल्यू एक्स जो है इधर रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सॉल्यूशन बाद में, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? क्वेश्चंस में किसी का डाउट्स है? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अभी मल्टीप्लिकेशन का कोई इंस्ट्रक्शंस है सर? हम पढ़ाया कुछ? हो सर। नहीं पढ़ाया तो देंगे नहीं। तनुश्री, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तुम चुपचाप ही रहते हो क्या? नहीं सर। ओके। कोई मल्टीप्लिकेशंस का कोई इंस्ट्रक्शंस हम कराया अभी तक? एक जन आंसर दिया नो सर। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वो सोचो। मान के चलो 3 into 4 है, कितना होता है डेसिमल में? 12। हम ऐसे कर सकते नहीं? 3 + 3 + 3 + 3 कितना होगा? 12। हम ऐसा नहीं कर सकते? 4 + 4 + 4 कितना होगा? 12। सर कैसे हो रहा है? ए नंबर को इतना बार ऐड करो और ए नंबर को इतना बार ऐड करो। कंक्लूजन इज क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अभी इस प्रोग्राम को मॉडिफिकेशन करके तुम लोग बना सकते हो। अभी तुम लोग सोचो तो क्या क्या करोगे। थोड़ा पहले एक बार सोचो। हम बोल देने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा तुम लोगों का। बोलो। एनी डाउट्स? कुछ ही किसी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इसको तो मॉडिफिकेशन करके कर सकते हो। देखो ये लाइन होगा, कितना बार एडिशन करना पड़ेगा इसमें? दो बार ना? जितना कंटेंट होगा 8। ना पहले इसके बोलो, तीन नंबर को एडिशन करने के लिए कितना बार एडिशन करना पड़ेगा? 2 बार। यस सर। तो एक बार क्या करेंगे? Yes, 0 sir. के साथ ऐड करेंगे। यस सर। तो एक्यूमुलेटर को 0 करना जरूरी है। यस सर। सी को 0 करना भी जरूरी है, क्योंकि कैरी फ्लैग को Yes, हमको कैरी फ्लैग तो चाहिए ही चाहिए। यस। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों लाइन को लेकर। MVI V,05 नहीं होगा। कितना बार एडिशन करना पड़ेगा? जो 85 में 00 में जो कंटेंट है वो। हाँ या ना? यस सर। यस सर। किसको एडिशन करना है? 8501 का जो कंटेंट है वो।
इसको एडिशन करना है इतना बार, वाइस वर्सा भी हो सकता है, मगर एक तो करना पड़ेगा। मैंने जो किया, इसका इतना बार एडिशन करेंगे ये नंबर को। इट्स क्लियर और नॉट? यस सर। तो पहला से हम Yes, लिखते sir. हैं, पहले से हम लिखते हैं MBI A, 00H move C, A LXI H, 8500H। HL में क्या होगा अभी? HL में क्या होगा बोलो? 8500. 8500. So what are the content of M? The content of 8500. कंटेंट ऑफ 8500, मतलब हमारा एक क्वेश्चन के मुताबिक PQ। Yes sir. Yes, sir. तो मूव B, M क्या होगा? PQ B के अंदर स्टोर हो जाएगा। हैं? बोलो। PQ B के अंदर स्टोर हो जाएगा। 8500 का कंटेंट B के अंदर स्टोर होगा, मतलब PQ B के अंदर स्टोर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देखो मैंने ये दो लाइन जो है इसको इंटरचेंज किया, थोड़ा चेंज किया। अभी कौन सा नंबर को एडिशन करना है? कौन सा नंबर को एडिशन करना है? बोलो। RS. 8501 का कंटेंट, इसीलिए देखो मैंने क्या किया, INXH किया। तो अभी HL में क्या हो गया? 8500. नो, 8500 तो था ही, INXH किया, इसके बाद क्या होगा? 850001 8501 नहीं, 8501 8501 Yes, sir. 8501। वेरी गुड, 8501। तो अभी एम का कंटेंट मतलब क्या है? RS. RS मतलब द कंटेंट ऑफ 8501। एम आई राइट? Yes. Yes, sir. तो हम अभी कर रहे हैं एड एम। किसके साथ क्या ऐड होगा? एक्यूमुलेटर के साथ। कौन सा एडिशन होगा? किसका कंटेंट? 8501. 8501 का कंटेंट एडिशन होगा, मतलब RS का एडिशन होगा। रिजल्ट किधर स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। कंपलसरी कैरी चेक करना है, INR C, INR C। अभी क्या करना पड़ेगा? इस प्रोग्राम में क्या किए थे देखो, वो कर सकते हैं। INXH होगा कि नहीं? हम लोग कौन सा एडिशंस करेंगे? बार बार वही नंबर, सेम नंबर, सेम नंबर। हैं? बोलो। सेम Yes. नंबर, तो मेमोरी लोकेशन बढ़ाने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं जरूरत है बढ़ाने का। क्यों बढ़ाएंगे हम? INXH किया क्योंकि वो 5 नंबर था, पांचों मेमोरी लोकेशंस में नंबर था। इसमें तो पांचों मेमोरी लोकेशंस में नंबर नहीं है, इसमें तो एक ही मेमोरी लोकेशंस में नंबर है। सिर्फ 8501 का कंटेंट एडिशन करना है। तो 8501 का कंटेंट का एडिशन करना है, तो हम क्यों बार बार पूरा एडिशन करते जाएंगे, है ना? तो हम INXH नहीं करेंगे, करेंगे DCR B, जंप एट नॉट 0, 0 ना होने से जंप करेगा किधर? एड एम तक। ये घूमते रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट किधर रहेगा? आफ्टर द एडिशन रिजल्ट किधर रहेगा? Accumulator.
किधर जाएगा? ST 8 सर हाँ बोलो। सर DCR भी हम लोग यूज किया, इसमें एक स्टेप सर घटा देगा, फिर कैसे होगा? एमुलेटर बी के तो घटाना पड़ेगा हमको ना। हम बी को क्यों किया? बी में क्या है? बी में क्या है बोलो तो पहले। बी में सर एम का सर वैल्यू है। हाँ, एम का मतलब किसका वैल्यू है? 8500 85 8500 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट है। मतलब 8500 का कंटेंट मतलब क्या है? पीक्यू। PQ तो हमको क्या करना है? पीक्यू PQ टाइम आरएस को एडिशन करना है। तो एक बार तो एडिशन हो गया तो पीक्यू को घटाएंगे। ऐसे करके घटाते घटाते जब पीक्यू 0 हो जाएगा तब हमारा प्रोग्राम खत्म। इसीलिए डीसीआर बी किया। अच्छा, यस सर, समझ गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। yes sir सर नेक्स्ट कैरी है सी के अंदर, किधर लेकर जाना है? मूव ए कॉमा सी 8601H 8600 ओके। yes sir ये भी प्रोग्राम का मेमोरी लोकेशन से लिख कर हेक्स कोड लिख देना। ये भी लैब में करना पड़ेगा। दोनों प्रोग्राम ही कर देना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस yes sir हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो लोअर 8 बिट रिजल्ट एंड हायर 8 बिट रिजल्ट है, ये इसी से हो जाएगा? यही तो बोला सर। ये है टोटल रिजल्ट। यस सर। लोअर 8 बिट मतलब ये है लोअर 8 बिट। वाइजेड। अच्छा, एडेड कर। ठीक है, ये है हायर 8 बिट। यस इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो ना, 8 बिट करके आएगा। लोअर 8 बिट चला जाएगा 8600 में, हायर 8 में जो कैरी टाइप आएगा वो चला जाएगा 8601 में। इट्स क्लियर? यस सर। अभी गौतम, ममता एंड इरफान। यस सर यस सर। ममता कौन है? ये सब तो बोलो कम से कम। ममता यस का सर बोले ना, ममता कुमारी का माइक्रोफोन काम भी नहीं कर रहा है। वाह ब्यूटीफुल। जो भी है, इन तीन जन अभी बहुत गुस्से में है, इसीलिए तो हमारे साथ बात नहीं करता है। Am I right? नो सर। कभी कभी क्वेश्चंस करो, ये लोगों को रिप्लाई नहीं आता है। हाँ या ना, कुछ नहीं है। तो अभी इन तीनों को तो हमको खुश करना पड़ेगा ना। अच्छा, ममता तो अभी नहीं है, ममता अभी पिक्चर में ही नहीं है क्योंकि उसका माइक्रोफोन ही काम नहीं कर रहा है। तो छोड़ दो ममता को। बाकी जो दो जन है, गौतम एंड इरफान, इन दोनों को तो हमको खुश करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये लोग बहुत गुस्से में है क्योंकि कोई बात ही नहीं करता है। तो अभी कैसे क्या खुश करें इन लोगों को? कैसे खुश करें? चॉकलेट दे दे, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर कैसे चॉकलेट देंगे, क्यों चॉकलेट देंगे? एचएल रजिस्टर पेयर था, बीसी रजिस्टर पेयर था, डी रजिस्टर पेयर था ना ये तीनों रजिस्टर पेयर? Yes, sir. yes sir तीनों रजिस्टर पेयर के अंदर एचएल इज रिलेटेड टू एम। ओनली एचएल इज रिलेटेड टू एम। इट्स क्लियर? इट्स करेक्ट और नॉट? यस Yes, sir. ओनली एचएल ही एम के साथ लिंक्ड है, दूसरा कोई एम के साथ लिंक नहीं है। इट्स क्लियर? yes sir तो बीसी एंड डी का गुस्सा नहीं आएगा? हाँ या ना?
आएगा सर। खराब लगेगा। इन दोनों के लिए हम चॉकलेट देंगे। क्या चॉकलेट देंगे? उसका नाम है LDAX एंड STAX। याद रखना, ये दो जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ाने जा रहा हूं, ओनली रिलेटेड विद द BC रजिस्टर पेयर एंड D रजिस्टर पेयर, नॉट रिलेटेड विद द HL रजिस्टर पेयर। Is it clear? Yes, sir. Yes sir. These two instruction is related only BC and D, not related to HL register pair. बोलो। Any queries किसी का? STA क्या बोले? STA के लिए STAX and LDAX only related with the BC and D register pair, not related with the HL register pair. Functions क्या है हमें अभी तक बताया नहीं, मगर ये रिलेटेड है ओनली BC एंड D रजिस्टर के लिए, HL के लिए नहीं है, क्योंकि HL को पहले हम एम दिया, जिसके कारण इन दोनों हमारे ऊपर गुस्से में आया था, इन दोनों को चॉकलेट खिला दिया, LDX एंड STX दे। It's clear? Yes, sir. Can I proceed? Yes, sir. अभी कैसे प्रोसीड करें? LDA का फंक्शन क्या है सर? सर LDA का वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर में चल जाता है। कौन सा वैल्यू? LDA के गिवन जो रहेगा वैल्यू। LDA 8500 क्या फंक्शन है? तो जैसे हम 46H ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वो एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाता है। LDA 8500 का फंक्शन बताओ। देखो ऐसा करके विष्णु, तुम ऐसा मत सोचो जब तुमको छोटा कर रहा है क्या बड़ा कर रहा है, ऐसे करते करते ही तुम सीखोगे। फेस करना ही पड़ेगा। बोलो LDA 8500 का क्या फंक्शन होगा? तुम लोग एक इंस्ट्रक्शन सेट दिया गया है ना सर ने? यस सर ने शायद LMS में दिया था, मैंने बोला था उसको देने के लिए। उसको खोल के देखना, आज पूरा इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए हम लिख के दिया तुम लोगों को। बोलो। यस 29 पेज का है। 29 पेज नंबर हम नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं LDA का फंक्शंस क्या होगा। LDA 8500H, कोई दूसरा बोलेगा? आंसर ही बोलना चाहते हो? मेमोरी लोकेशन का डाटा, जो मेमोरी लोकेशन दिया रहेगा उसका डाटा एक्यूमुलेटर में जाके कॉपी हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब LDA 8500 जो है उसका जो डेटा रहेगा, 8500 का जो डेटा रहेगा वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। 8500 नहीं आएगा, 8500 मेमोरी लोकेशंस का जो कंटेंट है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। मतलब एक्यूमुलेटर में आएगा। सिमिलरली LDAX, X मतलब क्या बोला था मैंने? रजिस्टर पेयर। आइदर तुम B दे सकते हो और नहीं तो D दे सकते हो, H नहीं दे सकते हो। LDX B और D दे सकते हो, इन दोनों रजिस्टर पेयर के लिए वैलिड है। तो LDX B करने से क्या होगा? मान के चलो बिफोर द इंस्ट्रक्शंस एट 8500 एंड 8500 में है AB, एक्यूमुलेटर में है 12। ये AB इसमें कॉपी हो जाएगा। मतलब आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस होगा BC विल बी अनचेंज, BC 8500, 8500 will be also unchanged AB, but accumulator will be AB। मतलब क्या हुआ? LDX B मतलब the content of BC register pair act as a address, the content of BC register pair act as a address, the content of BC register pair act as a address, and the content of that particular address will be copied into the accumulator। I'm repeat once again, the content of BC register pair
act as a address and the content of that particular address will be copied into the accumulator. It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. मतलब लगभग एलडीए का जो काम है वही है, एलडीए का जो काम है वही है। एलडीए के बाद हम लोग 16 बिट का एड्रेस देता है, वो एड्रेस ना देके हम लोग रजिस्टर पेयर दे रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. सर नेक्स्ट, STX। बोलो इसका फंक्शन क्या होगा? STX मान के चलो D। STA का जो फंक्शन है STX का ऐसा ही फंक्शन है। देख के STA पढ़ाया, LDAX पढ़ा दिया। अभी तुम लोग बोलो STX का फंक्शंस क्या होगा? इसमें बोलेंगे तो क्या होगा? एक्यूमुलेटर से मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। वाओ ब्यूटीफुल, मतलब ये 12 चला जाएगा इसमें। यस सर, यस। इज इट क्लियर? मतलब इधर हो जाएगा 12, इधर भी हो जाएगा 12। यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. जस्ट रिवर्स। तो STX भी हम तुम लोगों को समझा दिया। चलो अभी एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम। Write an assemble language program which is copy a block of data array, which is copy a block of data array, which is copy a block of data array assuming length of the data array stored in 8400H, assuming length of the data array stored in 8400H, array starting from 8500H, and the output will be stored from 8600H, from 8600H. क्वेश्चन किसका समझ में आया, किसका नहीं आया बोलो। What do you mean by data array? So, and the output will be stored from 8600H. बोलो किसका समझ में आया, क्वेश्चन किसको नहीं आया। जो समझ में आया वो समझा सकते हो, जो नहीं समझ में आया बोल सकते हो। नहीं समझ। क्वेश्चन पहले बोलो, डेटा एरे मतलब क्या है? एरे मतलब क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। मतलब एक ही टाइप का डेटा होगा। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद 55, फिफ्थ नंबर, ऑल आर स्टोर्ड लाइक दैट। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक के बाद दूसरा तुम्हारा ऐसा स्टोर रहेगा। वेरी गुड। तो अभी जो है मान के चलो, लेंथ ऑफ द डेटा एरे किधर बोला? 8400H में स्टोर है। मान के चलो इधर 05H स्टोर है। तो 5 डेटा इधर से लेकर पूरा इधर में कॉपी होगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इधर में कुछ डेटा रहेगा, मान के चलो ABCDEF 7 6 9E, ये पूरा डेटा इधर से कॉपी होकर इधर आ जाएगा। जैसे ABCDEC 76 and 9E। समझ में आया कि नहीं आया बोलो।
ये पूरा जो डेटा है 5 नंबर, क्यों इधर 5 लिखा है इसलिए, इधर 10 लिखा हुआ रहता तो इधर में 10 ठो नंबर कॉपी करके इधर में पेस्ट करता। इज इट क्लियर? Yes, sir. इधर में 5 नंबर होगा क्या 10 नंबर होगा ऐसा डायरेक्टली नहीं बताया। क्या बोला? एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है। इट्स क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी बोलो इसको कैसे क्या करेंगे। बोलो। इसको हम एक्यूमुलेटर में कॉपी कर सकते हैं। सर अभी अभी तो पढ़ाया है, कौन सा इंस्ट्रक्शन से होगा? बोलो। LDAX LDAX से होगा। yes sir मान के चलो इसको हम BC में स्टोर करेंगे 8500, तो LDX B कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. yes sir BC रजिस्टर पेयर में 8500 करेंगे तो LDX B कर सकते हैं। ये डेटा हम इधर स्टोर कर सकते हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन से? STAX STAX. STAX। मान के चलो ये DE में स्टोर करेंगे तो STAX D होगा, राइट? Yes, sir. सर कौन सा रजिस्टर हमारा यूज्ड हुआ? BC हुआ, DE हुआ एंड एक्यूमुलेटर हुआ, हाँ या ना? yes Yes, sir Yes, sir. ये रजिस्टर छोड़ के और क्या रजिस्टर है? बोलो, और कुछ रजिस्टर है? बी सी डी ई एक्यूमुलेटर छोड़ के और क्या रजिस्टर है? EC. BC तो हो गया। HL, sir. HL. HL रजिस्टर अभी भी HL. खाली है, तो H के अंदर A स्टोर कर देंगे। ओके, उसको सिर्फ डिक्रीमेंट करते जाएंगे, बस हो जाएगा प्रोग्राम। कैसे करेंगे? पहले इसको हम H में स्टोर कर रहे हैं 05 को, कैसे करेंगे बोलो तो? 05 को H में स्टोर करना, बोलो। 05 ये जो 8400 का कंटेंट हम H में कैसे स्टोर करें? बताओ। LXI करके तो HL में स्टोर हो जाएगा 8400। हम H के अंदर ये नंबर स्टोर करना चाहता हूँ 05 05 number. कैसे कर सकते हैं? पहले LDA का यूज करके LDA MOV से यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली। हम LDA यूज करेंगे, LDA yes sir 8400H मूव H, A
Is it clear or not? Answer is clear. Yes, sir. Yes, sir. 8400 का कंटेंट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर कंटेंट चला जाएगा एच में। एच में। हाँ, हो गया एच में। नेक्स्ट बीसी को हमको 8500 स्टोर करना है बीसी में, और डी में 8600। कैसे करेंगे? एलएक्सआई बी कॉमा 8500H एलएक्सआई डी कॉमा 8600H। इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी 8500 का कंटेंट लाना है एक्यूमुलेटर में, कैसे होगा? एसटीए। नो, 8500 का कंटेंट आना पड़ेगा एक्यूमुलेटर में। कैसे होगा? तुम लोग ही तो बोले हो अभी। LDAXB। ओके, नेक्स्ट इस डेटा को लेकर जाना है 8600 में, कैसे होगा? STAXD। सर अभी कौन सा मेमोरी लोकेशंस को डेटा को लेना है? 850. कौन सा जगह में जाएगा? 860. मैं दोनों को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बीसी को भी डीई को भी। Yes, sir. INX B INX D। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। एक ऑपरेशन हमारा हो गया, एक डेटा कॉपी हो चुका है, तो हमारा जो एज का जो वैल्यू है उसको एक डिक्रीमेंट करना है। DCR H, देन चेक करेंगे जीरो है कि नहीं है। जंप एट नॉट जीरो, जीरो ना होने से LDAX में जंप करेगा। तो ये लूप घूमते रहेगा, कितना बार? जो वैल्यू है 8400 में उतना बार। ये 5 दिया है इसीलिए 5 है, इधर 10 देता था तो 10 बार जितना नंबर है पूरा कॉपी करते जाता था। ठीक है, ये घूमेगा जितना बार, जितना वैल्यू होगा 8400 का। अभी देखो डेटा भी स्टोर हो गया, रिजल्ट, और रिजल्ट स्टोर करने का कुछ है नहीं, सारा रिजल्ट स्टोर हो गया। हर एक बार तो कर रहे हैं जब इधर से इधर चला जा रहा है, तो रिजल्ट स्टोर करने का कुछ है नहीं, तो इसीलिए यही चलती, प्रोग्राम खत्म। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर डीसीआर से एक एक घटाते जाएगा सर, तो फिर इसके बाद 8500 आएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम ना? ना, पहले एच में क्या था? इस प्रोग्राम के अनुसार क्या था? 05. 05 5 टाइम्स था। 05 5 है, तो 5 से एक घटेगा 4 होगा, तो 4 जीरो है? 4 जीरो नहीं, फिर इधर से जंप करके इधर चला जाएगा। फिर 8501 का कंटेंट आएगा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर कंटेंट जाएगा 8601 में, क्योंकि अभी बीसी एंड डी दोनों इंक्रीमेंट करके अभी बीसी आ गया इधर, डी आ गया इधर, राइट? बीसी आ गया अभी इधर और डी आ गया इधर, तो अभी इधर का डेटा इधर में चला जाएगा इन दोनों स्टेप से, फिर से इंक्रीमेंट करेगा। तो INX B का कितना वैल्यू होगा? 8502। INX D करने से क्या होगा? 8602। तो अभी इधर का डेटा इधर लेकर जाएगा, तो ये डेटा अभी फिर आएगा DCRH। DCRH मतलब कितना वैल्यू था इसके पहले? इसके पहले कितना था? 4 था ना इसके पहले? Yes, sir. तो अभी 3 होगा, फिर 0 है, 3 मतलब 0? नो सर। नो सर, फिर इधर से जंप करके इधर, फिर 8502 का कंटेंट 8602 में चला जाएगा, फिर एक बढ़ाएगा INX B और INX D, मतलब 8503 हो जाएगा, 8603 हो जाएगा, ऐसे करके करते जाएगा। ठीक है? यस सर। यस Yes, sir. इसका रिवर्स ऑर्डर में करके लेकर आना, तो हम देखेंगे कैसे कर रहे हैं। यस सर। रिवर्स ऑर्डर में
मतलब 8600 का कंटेंट से लेके मतलब एरे को वहां से यहाँ लाना है। मतलब 8500 का कंटेंट जाएगा 8604 में, 8500 का कंटेंट जाएगा अच्छा ठीक 8604 है में, सर। INR का सर यूज करेंगे ना। 8501 का कंटेंट जाएगा 8603 में, 8502 का कंटेंट जाएगा, ठीक है सर। ऐसे करके जाएगा। उतना आसान नहीं है, सोच के अच्छा से करना। समझ गया हम क्या बोला क्वेश्चंस? यस सर। विष्णु समझ में आया? यस सर। सर हमको लगता है INR का सर यूज करना पड़ेगा इसमें। INR? यस तब INR तो एक बढ़ाएंगे। एक बढ़ाएंगे। यस सर। इधर में? हाँ यस सर। इधर में क्या करेंगे? यस सर क्या? हमको तो ये वाला जाएगा इधर में। तो इधर डिक्रीमेंट करेंगे सर, इधर डिक्रीमेंट करेंगे। तो कैसे क्या करोगे तुम करके हमको बोलना। केवल जी समझ में आया? यस सर। ट्राई करेंगे सर एक बार। आंसर ही समझ में आया केवल चीज? यस सर। अच्छा, 2-4 प्रोग्राम ट्राई करो घर में, बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारा प्रोग्राम है। अभी ऑड नंबर, इवन नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करना है। ये सारा इंस्ट्रक्शंस के जो प्रोग्राम जो मैंने लिखाया, इसका मेमोरी लोकेशन एंड हेक्स कोड लिख लेना घर में, किट में करना होगा। It's clear to all of you? Yes, sir. Can I proceed for the next? यस सर। छोड़ दो, आज की छोड़ देते हैं। Yes, sir. चलो आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट दिन देखा जाएगा। नेक्स्ट दिन मतलब टुमारो। ओके? यस सर। Tomorrow will be the same time. Okay. Bye for today. We will see again you tomorrow. थैंक यू सर।